The inauguration day of the Bhavya Ram Mandir is in fact inching closer, but the political noise around this entire saga is in fact growing even louder. We are talking about the politics around the event that continues to in fact escalate. Several leaders from the opposition parties have made it clear that they will not attend the temple inauguration and have been accused the BJP of politicizing this entire ceremony, with CPIM leader Sitaram Yechury declining the invite to the temple inauguration, while Congress's MP Shashi Tharoor saying that temples are not political tools. UBT Sena MP Sanjay Raut on the other hand said that BJP has politicized this event to the extent where it looks like they have kidnapped Lord Ram. Now CPI also targeted the BJP and said that ceremony was a clear violation of the constitution. Meanwhile, the BJP has denied the politicization charges against them and termed the opposition's reaction to the event as anti-Hindu. To my mind, a temple is actually not a political stage. It is a place for people to contemplate the divine, do their prayers, live their normal personal lives, and it's a personal choice. Now, individuals have been invited. Let individuals decide if they wish to go, is my stand. As far as I'm concerned, I've not been invited, so I don't have to make this decision. But my own view is, I don't think of the temple as a political stage. And if it is a political event, then it's not the same as going to a temple to pray. The religion and politics should not be mixed. What BJP is trying to do, what RSS is trying to do, mix the parliament, politics with religion. This, we think it is violative of the constitutional positions. We do not agree with this. मंदिरच्या ह्याच्यात फारसा जात नाही. विरोधक आम्ही या दृष्टीने पाहतोय की सत्ताधारी पक्षाच्या समोर लोकांचा पाठिंबा मिळवण्याच्यासाठी ठोस असा कार्यक्रम नाही, आणि त्यामुळं राम मंदिर जेवढं एकच निमित्त घेऊन जनतेमध्ये काही वेगळं मत तयार करण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. यापेक्षा दुसरं काही दिसत नाही. भारत के कई पीढ़ियों ने जो भव्य राम मंदिर का कल्पना की थी या सपना देखा था, वो पूरा होने को आया. Congress leaders campaigning, pretending that they are all devotees, Hindu devotees, pretending that they are Hindu devotees. They campaign during elections, but when it comes to the issue of participation in the Pran Pratishtha of the temple, they have doubt. Somewhere along the line, Congress party has lost its ideological moorings. It has. I think first they will have to come to terms with it. That's why they are facing all these problems. Now let's bring you up to speed with the preparations on the ground. Week ahead of the consecration ceremony of the Ram Temple, Prime Minister Narendra Modi is scheduled to visit Ayodhya on December 30th. Prime Minister will inaugurate projects over 11,000 crore rupees, including the Ayodhya Airport and the Ayodhya Dham Junction railway station as well. The Prime Minister will also flag off 2 new Amrit Bharat trains. The Prime Minister will also lay foundation stone for a greenfield township in Ayodhya. The day's events will culminate around 1 p.m. with the public program, where the Prime Minister will dedicate multiple developmental projects amounting to more than 15,700 crore rupees across the state of Uttar Pradesh. धर्म की नगरी अयोध्या सज रही है, संवर रही है, निखर रही है. ये देखें, लता मंगेशकर चौक बेहद ही महत्वपूर्ण और फेमस चौक है अयोध्या का, और यहाँ से थोड़ी दूर पर ही राम जन्मभूमि है और वहाँ पर मंदिर बनाया जा रहा है. हनुमानगढ़ी भी यहाँ से थोड़ी दूर पर ही है, और इसको किस तरीके से सजाया जा रहा है, संवारा जा रहा है, और इसकी खूबसूरती बेहद ही लगातार निखरती जा रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 दिसंबर को यहाँ पर अयोध्या आने वाले हैं, और उससे पहले तमाम वो श्रद्धालु हैं, उनकी संख्या लगातार यहाँ पर बढ़ती जा रही है. कुछ लोग जो श्रद्धालु यहाँ पर आए हैं अयोध्या घूमने के लिए, और दर्शन भी शायद आप लोगों ने किया होगा. हाँ जी, बिल्कुल किया जी. कहाँ गए अभी? अभी हम राम जन्मभूमि. अच्छा. हाँ जी.
तो पहली बार आए हैं, कहाँ से आए हैं आप? हिमाचल प्रदेश। यहाँ पे पहली बार आए? हाँ जी, पहली बार। अच्छा, कैसी लग रही है अयोध्या? अयोध्या नगरी बहुत ही बढ़िया नगरी है, राम लल्ला जी की नगरी है। हाँ। और योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व में बहुत ज़्यादा प्रगति हो रही है। और हमें दिख रहा है। आप बताएं? हाँ सर, बहुत प्रगति हुई है यहाँ पे। अयोध्या इतनी पवित्र जगह है कि राम जी का नाम सुन के ही मन से ऐसे अमृत सा ऐसे लगता है कि कण कण ऐसे रोम रोम समा जाता है। और अयोध्या का नाम तो सर हर जगह फैला हुआ है। हम पहली बार आए हैं और यहाँ आके इतना अच्छा लग रहा है ना कि राम जी ऐसे मन कर रहा है कि राम जी खुद प्रकट हो जाए और हमें दर्शन दे दें। अच्छा, बहुत सारे लोग अक्सर हिल स्टेशन जैसे उत्तराखंड, हिमाचल से तो आप खुद ही वहाँ पे घूमने के लिए जाते हैं, आप लोग अयोध्या आ रहे हैं अब? हाँ सर, एक्चुअल हम लोग सारा हिली एरियाज घूम चुके हैं। हाँ। तो ये हमारे लिए एक विशेष अवसर था कि मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में जो यहाँ अब इतना भव्य मंदिर पूरे विश्व में एक बन रहा है, तो उसके दर्शन करने के लिए हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। और जैसे सुनने में भी आ रहा है कि 22 जनवरी को इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी अपने कर कमलों के द्वारा कर रहे हैं। तो हमें भी सौभाग्य प्राप्त हुआ पूरे परिवार के साथ, विशेषकर यहाँ पर आकर। और हमें राम लला जी के हमें दर्शन प्राप्त हुए। और उम्मीद करते हैं कि मोदी जी इस भव्य मंदिर को बहुत शीघ्र बनाकर अब पूरे समस्त विश्व में एक उदाहरण पेश करने वाले हैं। अयोध्या में राम मंदिर तो बन ही रहा है और लगभग कंप्लीट भी होने वाला है, लेकिन अयोध्या जो नगरी है, शहर है, वो कैसी लग रही है? आपने पहले हो सकता है टीवी में देखा हो कि अयोध्या कैसी है, पहले कभी नहीं आई हो, लेकिन अब कैसी लग रही है? अब पहले तो हम कभी नहीं आए हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है कि इतना अच्छा मंदिर बन रहा है। और बस जय श्री राम, जय श्री राम। तो ये देखें, बहुत सारे जो महिलाएं यहाँ पर फोटो भी खिंचवा रही हैं यहाँ पर। हाँ, ये देखिए, आप लोग कहाँ से हैं? आप लोग कहाँ से हैं? यहीं के हैं, हम अयोध्या के? अयोध्या वासी हैं सर। आपको तो बहुत बेहतर तरीके से पता होगा कि पहले अयोध्या कैसी थी और अभी कैसी है। जी बिल्कुल जी, बहुत डेवलपमेंट है। और मतलब हमारा सौभाग्य है कि हम यहाँ और अपनी आंखों से सब कुछ बनते हुए देख रहे हैं। जी, और प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं। जी जी बिल्कुल, जी जी। तो लग रहा है कि अयोध्या का विकास लगातार हो रहा है और रोजगार के भी साधन होंगे, लोगों के जीवन में बदलाव आएगा। सर, लोगों के जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव दिख रहा है और सर वो आएगा, जरूर आएगा। अगर हमारे प्रधानमंत्री जी इसी तरह रह गए तो सर बहुत बड़ा चेंज आएगा। और हम लोग अयोध्या के रहने वाले हैं, हमको बहुत गर्व हो रहा है कि हम अयोध्या के रहने वाले हैं। ये देखिए, ये है लता मंगेशकर चौक और यहाँ पर बीड़ा लगाई गई है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, पर्यटन विभाग की तरफ से, और इसको सजाया जा रहा है फूलों से। फूलों से सजाने के पीछे एक सबसे बड़ा कारण यह है कि 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अयोध्या आ रहे हैं और अयोध्या में उनके कई कार्यक्रम हैं, जिसमें रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, उसका अनावरण करना है। इसके अलावा जनसभा को भी संबोधित करेंगे, रोड शो करेंगे। और उससे पहले ये अलग अलग विभागों के जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, सड़कों पर आपको नजर आ रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई है और साथ में अयोध्या की जो सड़कें हैं अब बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिख रही हैं। चौक चौराहे उनको सजाया जा रहा है, संवारा जा रहा है और खूबसूरती लगातार अयोध्या की उसमें निखार आता जा रहा है। धर्म की नगरी अयोध्या एक तरफ सज रही है, फूलों से सजाया जा रहा है चौक चौराहों को, तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कार्यक्रम है 30 दिसंबर को, और उससे पहले अयोध्या के चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मी यहाँ पर तैनात हैं। ये देखिए एटीएस के ब्लैक कमांडो, और यहाँ पर बड़ी संख्या में इस तरीके से आपको चौराहों पर नजर आएंगे सुरक्षा कर्मी। अलग अलग जो एजेंसियां हैं यहाँ पर तैनात हैं, क्योंकि पार्लियामेंट में अभी एक हाल फिलहाल में ही घटना हुई थी, वहाँ पर घुस गए थे 2 लोग और उसके बाद तमाम हंगामा हुआ था, तो उसको लेकर भी खुफिया एजेंसियों की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। और आप देखें कि प्रधानमंत्री का रोड शो भी है अयोध्या में, यहाँ पर जनसभा को भी संबोधित करेंगे, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, उसका अनावरण भी करने वाले हैं। कई कार्यक्रम हैं अयोध्या में, और यहाँ पर प्रधानमंत्री के आने से पहले कई ऐसे रास्ते हैं उनको बंद कर दिया गया है, ब्लॉक किया गया है, बैरिकेडिंग भी लगाई गई है। देखिए, हनुमान